Hello students, all the students who are preparing for UPSC, IAS examination, IFOS examination, they all know that how important is the syllabus. लेकिन जब भी वो syllabus ढूंढने की कोशिश करते हैं तो they come across that UPSC has only given a generalized syllabus. तो उनको बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन से टॉपिक पढ़े जाएं, कौन से टॉपिक ना पढ़े जाएं, because their only source of information will be the internet and the some of the materials that are available, and sometimes those materials, those sources are not that much helpful. They give either they will be giving a very limited number of topics, या तो फिर जितने भी टॉपिक उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं सभी को लिस्ट कर दिया जाता है. So to help out the student, I am coming out with a series of syllabus decoding related to the geography subjects, which is helpful for your prelims examination as well as in mains examination, and it will be equally helpful for the aspirants that are aspiring to appear forest examination. In this session, I will cover the general geography part of the geography. In fact, when you will go through with the syllabus of geography, you will find that UPSC is only highlighting the topics like in prelims, they are only writing India and world geography, physical, social, economic geography of India and the world. So in case of prelims, the syllabus is very vague. इस तरीके से लिखा गया कि आपको सब कुछ पढ़ लेना है, फिजिकल ज्योग्राफी भी, सोशल ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी. बट इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग, तो उससे अच्छा फिर आप ऑप्शनल ही सेलेक्ट कर लें. तो जो बच्चे ऑप्शनल नहीं जिनका ज्योग्राफी है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी बेस्ड ऑन द सिलेबस मेंशन्ड इन द प्रीलिम्स. मेंस में आप आएंगे तो मेंस का सिलेबस थोड़ा एग्जॉस्टिव है, बट स्टिल इट इज़ वेरी मच जनरलाइज. मेंस में फिजिकल ज्योग्राफी का जो टॉपिक है दैट इज़ ओनली written like salient features of world physical geography and important geophysical phenomena such as earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclone. So in physical geography that is written in your mains examination syllabus also, यहाँ पे भी जो टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है, वो बहुत इलेबोरेटिव नहीं है. Now what you just need to understand, whenever you will start studying the geography subject has been divided in two broader branches, physical geography and human geography. Physical geography deals with the environment not in the sense जो आप समझते हैं, rather than environment like which provides the basis of living on this earth surface. आप सबको पता है दैट ऑल ऑफ यू आर लिविंग ऑन द अर्थ सरफेस, लाइफ अपीयर्ड ऑन द अर्थ सरफेस, लेकिन लाइफ के लिए जो कंडीशन है, जो इकोसिस्टम है, दैट इकोसिस्टम इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी. तो फिजिकल ज्योग्राफी को इसीलिए कहा जाता है नेचुरल साइंस, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द नेचर. नाउ इन फिजिकल ज्योग्राफी देयर आर फोर मेजर कंपोनेंट्स, दैट इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, that deals with the physical geography. But even in this also you will not find that the mentioning of the general geography. तो ये general geography क्या है? General geography is associated with the physical geography, लेकिन जो आपका general geography के topics हैं वो कहीं पे भी syllabus में mentioned नहीं है, but every year UPSC asks lots of question from the general geography. तो जनरल ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं for your UPSC? The very first topic you need to cover is origin and evolution of the universe. Everything start with the universe. तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्स किस तरीके से ओरिजिन हुआ. There are different ideas, concept related to the origin and evolution of the universe, वो आपको पढ़ना होगा. Out of all the concept, the most acceptable concept जहाँ पे सभी साइंटिस्ट का एक एग्रीमेंट है, that is the concept of Big Bang theory. Big Bang theory has been propagated in very late
तो ये 20th सेंचुरी में प्रोपोगेट की गई थी और बिग बैंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद द एक्सीडेंटल डिस्कवरी। तो एक्सीडेंटल डिस्कवरी है बिग बैंग थ्योरी, तो उसको आपको डिटेल में पढ़ना होगा। यू मस्ट हैव बीन कम अक्रॉस विद अ वेरी फेमस पर्सन नेम्ड एज हबल। तो हबल टेलीस्कोप का आपने नाम सुना होगा। तो हबल इज considered as the father of this Big Bang concept. Then comes the theories related to the origin and evolution of the earth. So earth geography is not the study of the earth. Geography is something that is associated with the study of the earth surface. लेकिन अर्थ बहुत बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेंटर में है ज्योग्राफी के, इसीलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि अर्थ किस तरीके से इवॉल्व हुई, अर्थ किस तरीके से ओरिजिन हुई। सो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, मोनोइस्टिक कॉन्सेप्ट, ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज दिस मोनोइस्टिक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज दिस ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट। देन बेसिक आइडिया ऑफ द सोलर सिस्टम, basic idea about the sun, basic idea about the all the planets that are present in the solar system, also some of the satellite, solar flare, solar wind, solar storm. So all these information you need to have. यहाँ से रेगुलर क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आपको प्रीलिम्स में मिलेंगे। देन शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का शेप क्या है, साइज क्या है, उसका इन जनरल इफेक्ट क्या है अर्थ सरफेस पे। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, to locate the places on the earth surface we follow the grid pattern. तो ग्रिड में हमारे 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो पहले आपको जानना होगा कि लैटिट्यूड्स क्या हैं, मेजर लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं, मेजर लैटिट्यूड्स का रोल क्या है ऑन द अर्थ सरफेस, हाउ इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लाइमेट ऑल्सो। देन लॉन्गिट्यूड्स क्या है, कौन कौन से लॉन्गिट्यूड हैं, किस तरीके से लॉन्गिट्यूड रन करते हैं। Then antipodal points, what is this antipodal points on the earth surface, opposite points क्या है earth surface पे। Then rotation of the earth, how the earth rotates, rotation of the earth along with the longitude in fact will be helpful in understanding the time on the earth surface. हर जगह पे टाइम आपका एक नहीं होगा, क्योंकि अर्थ आपकी कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है, तो जो सन का मूवमेंट है विद रिस्पेक्ट टू द सन अर्थ का, उसकी वजह से ऑल द प्लेसेस विल हैव अ डिफरेंट टाइम पीरियड। लेकिन अब इंडिया में अगर आप कोलकाता में है और आप मुंबई में है, आप दिल्ली में है, अलग अलग टाइम होगा तो देयर विल बी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उसी के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम को हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे इंडिया में है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जिसके बेसिस पे जितने भी प्लेसेस इंडिया में होंगे दे ऑल विल फॉलो द सेम टाइम लाइन, जहाँ पे आपका सेम टाइम कंसीडर किया जाता है। तो इसके बारे में भी आपको जानना होगा। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेट। अगर आप क्लाइमेट अच्छे से समझना चाहते हैं तो यू शुड हैव आइडिया ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। बहुत सारे स्टूडेंट, इवन ऑप्शनल के स्टूडेंट, उनको लगता है कि रेवोल्यूशन क्या है, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। लेकिन अगर आपको रेवोल्यूशन नहीं पता होगा देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ सनलाइट इज कमिंग ऑन द अर्थ सरफेस, सनलाइट का ड्यूरेशन कितना है, कहाँ पे ड्यूरेशन चेंज हो रहा है, how the duration is changing over the higher latitude, over the lower latitude. So all these things you will understand in the revolution, and then in fact this revolution will decide the seasons on the earth surface. तो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा एनुअल मार्च ऑफ द सीजन ऑन द अर्थ सरफेस। किस तरीके से समर है, किस तरीके से विंटर है, किस तरीके से स्प्रिंग है, ऑटम है, कैसे आपकी सीजन चेंज हो रही, इस सीजन चेंज पे अर्थ के रेवोल्यूशन का इफेक्ट क्या है। एंड देन rotation, revolution, everything you will combine to understand the international date line. International date line is a very interesting concept. International date line का concept जब आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा किस तरीके से आप अलास्का और आप जापान में हैं, तो आप जापान और अलास्का दोनों आसपास ही हैं, रसिया का भी एरिया है, दोनों आसपास ही हैं और दोनों प्लेसेस की डिस्टेंस हार्डली 4 किलोमीटर है। लेकिन एक जगह पे आप देखेंगे इट्स 31 दिसंबर और दूसरी जगह पे 1 जनवरी। सो विद इन द डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर यू विल फाइंड दैट देयर आर 2 डिफरेंट डेट्स। सो देयर आर 2 डिफरेंट डेट ऑन द सरफेस। तो किस तरीके से होती है दैट यू विल लर्न इन केस ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट यू आर सपोज टू स्टडी अंडर द सब्जेक्ट ऑफ जनरल ज्योग्राफी, जो कि आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन्ड है, बट रेगुलरली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। इन फैक्ट every 1 or 2 years
2-3 सालों में एक बार एक क्वेश्चन मेंस में भी पूछते हैं. सो इट इज़ नॉट ओनली important for the prelims but also for the mains examination. For covering these topics of the syllabus, the only book that you will be needed, जो भी नए स्टूडेंट हमारे प्रिपरेशन में आ रहे हैं, केवल एक ही बुक की आप हेल्प ले सकते हैं, दैट इज NCERT प्लस एटलस. तो कोई भी आप एटलस ले सकते हैं. तो NCERT और एटलस के थ्रू आप ये जितने भी टॉपिक हैं जनरल ज्योग्राफी के कवर कर सकते हैं. So these are the topics of the general geography. I will continue this series in which we will look out the other topics of the geography syllabus. That's it from my side. If you have not subscribed to our channel, so please subscribe to our channel to get the latest update related to the geography.